Open page number 58. Trains. Written by Humayun Kabir. Who was Humayun Kabir? Humayun Kabir was an Indian poet. He used to write his poetry in language of Indian English. English is of different type, like in your India, as there are different languages according to different states. Language varies. In same way, English varies country to country. So this poem has been written in Indian English language, written by Humayun Kabir, and he was socialist, educationalist person, poet. And in this poem, narrator, poet, where lived जस्ट बिसाइड ऑफ हिज विलेज, उसके घर, सॉरी हाँ, होम, घर के ठीक बगल से द रेलवे ट्रैक वाज पासिंग, उसके घर के बगल से रेलवे ट्रैक गुजरता था। और जब ट्रेनें आती जाती थी तो बड़ा हो हल्ला और शराबा होता था, रंबलिंग वगैरह होती थी, खड़खड़ाहट, धड़धड़ाहट, ड्यू टू विच ही गॉट डिस्टर्ब्ड, और उसकी वजह से वह डिस्टर्ब हो जाया करता था। बट एज अ चाइल्ड he became familiar with them, so he had written and expressed his own ideas in this poem. Whatever were his thinking in relation to this train. So now I am going to start. Trains. Trains, not train. Trains means huge lot of. Poet is talking about each and every train because it is the nature of train. Whenever it passes, goes through from anywhere, it creates a lot of rumbling. That is the खड़खड़ाहट, धड़धड़ाहट की आवाज etc. So poet is saying mother. देखो mother के बाद कामा लगा है, means mother is the addressing word. माँ, मम्मी. I sit by my window. By window, by का मतलब just beside of, ठीक बगल में सटकर बैठना. So poet is saying that I sit by my window for hours and on end. Hours on end एक phrasal word है. It means for a long time, लंबे से लंबे समय तक, बहुत देर देर तक. So poet is saying to his mother, telling to his mother that mother, I sit by my window, means poet used to sit just beside of his window, वो अपने खिड़की के ठीक बगल में बैठता था. For hours on end, for long time, means वो अपने खिड़की के बगल में लंबे समय तक बैठा रहा. And watch the long trains rumble past. Rumble, R-U-M-B-L, rumble means हड़हड़, धड़धड़, खड़खड़ाहट की आवाज करते हुए. Past means गुजरना. Means when the poet was sitting just beside of his window in his room, then poet saw that a train was not a lot of many of trains were going through, passing through the track beside of his home, creating the lot of hues and noise, and all such activities of the trains were seen by the poet by sitting for long time just by the side of his window, room's window. कवि कह रहा है कि माँ मैं देर तक यहाँ बैठा रहा, देर तक गाड़ियों की खड़खड़ाहट और धड़धड़ाहट सुना, कैसे ये गुजरती हैं, कैसे ये पास करती हैं, कैसे ये चली जाती हैं देर देर तक. Some are dark and journey tediously. Some are dark means some train are dark means काली है, means they have no light, there is no shine in them. So trains are dark means you know very well that at the night, in the evening time and whole night, bulb are lit in the trains. So poet is saying some are dark means some trains are dark means at that time when poets saw these dark trains, then time was of the daytime, दिन का समय था, उस समय वह देखा तो कह रहा है कि ट्रेनें डार्क हैं, अंधेरी हैं. एंड जर्नी टेडियसली, जर्नी JOURNY, जर्नी में ट्रेवल्स, यात्रा करती हैं. टेडियसली, TEDIOUSLY, टेडियसली मीन्स टायर्डलेसली,
थकी हुई हारी हुई सी हड़हड़ धड़धड़ खड़खड़ करते हुए चलती चली जाती हैं, क्योंकि लंबे लंबे समय तक वे चलती रहती हैं। नो डोर्स, कोई दरवाजे नहीं, नो विंडो, कोई खिड़कियां नहीं, नो शाइनिंग लैंप्स, ना ही कोई लाइट जलती है। मीन्स दैट ट्रेन वाज द कैरिज लोडेड ट्रेन, जिसे इन हिंदी यू कैन से मालगाड़ी। मीन्स हियर इन दिस लाइन पोएट इज टॉकिंग दैट he used to see the trains which were carrying the loaded things, loaded goods in them, and they had no window, door, even a little bit single light in them, so those were dark. Slowly they move like huge elephants, and how they start, how they move, how they come in motion, slowly, 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 just like the elephant of huge size, that move like shadows in the shadowy dark, that move like shadows. And those train without the light, without the window, without the door, come in motion just like a huge elephant, and move means departure from their place just like a shadow, छाया के रूप में, in the shadowy dark, और छाएदार अंधेरे मीन्स वे न उनमें लाइट है, न रोशनी है, न प्रकाश है। Anyhow, they are proceeding, going on, and they enter into the dark and disappear by entering into the dark. में से ट्रेनें चलती हैं, न लाइट है, न खिड़की है, न दरवाजे हैं, न कुछ है, और वो चलती चली जाती हैं, और जा करके वो क्या एक अंधेरे में खो जाती हैं, जहाँ के अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है, डिसअपियर हो जाते हैं, उनका अस्तित्व रिमूव हो जाता है, समाप्त हो जाता है। Sometimes, second para, sometimes a train comes flashing past. Flashing means having light. Past means to go through, guzarna. So poet is saying that sometimes he saw those trains who have light also, giving the flash of light, flash of roshni, and having light, having window panes, windows, and having doors, they are passing, they are going. उजाला है, रोशनी है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, और ये वो ट्रेनें पास कर रही हैं, वो ट्रेनें जा रही हैं। With many windows lit by many lamps, उन ट्रेनों में with many windows, ढेर सारी खिड़कियां हैं, and many lamps, ढेर सारी लाइट्स हैं, बल्ब हैं। That dance and wheel with movement swift. That dance means जो the trains dance means those trains who have light, door, windows, they seems like a dancing object. As seems they are very pleasant, very happy. And whirl with movement means whenever they start to take movement to become in motion, जब भी वो चलना शुरू करते हैं, they whirl means गोल गोल घूमती हैं। Swift, very slowly in soft way, swift, धीरे धीरे चलती हैं और फिर स्पीड पकड़ लेती हैं। मीन्स पोएट कह रहे हैं कि कुछ ट्रेनें तो अंधकार में आती हैं, चली जाती हैं, न लाइट है, न खिड़कियां है, न विंडो है, उनमें सामान लदे हुए हैं, क्या है भरा पड़ा है, और वो चलती भी हैं तो ऐसे जैसे थक गई हैं, चलते चलते सामान ढोते ढोते थके हारे भारी हाथी की तरह चलती हैं। और कुछ ट्रेनें सेकेंड पैसेज में कह रहे हैं कि वे जो हैं फ्री हैं, स्वच्छंद हैं, वे यात्रियों को ले जाते हैं, उनमें लाइट हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, और वे जब चलती भी हैं तो बहुत स्विफ्टली धीरे से निकलती हैं और स्पीड पकड़ लेती हैं, ऐसा लगता है मानो डांस कर रही हैं। अब देखो बेटा, इन दोनों में हाउ कंपैरिजन हैज बीन मेड। कवि ने कंपैरिजन किया है। ऊपर वाले पैसेज में कहा है कि ये जो ट्रेनें हैं ये बोरिंग हैं, टेडियस हैं, शैडोवी लगती हैं, दैट इज छायादार, परछाई मात्र, इनमें कोई जीव जान नहीं है। There is the negativity in those trains without having light, windows, and doors, etc. But in second para, poet is showing positivity. They are carrying human being. They are having light, windows, doors. They are seeming like dancing object. But in above passage, the trains which are carrying loaded goods, they are seeming like shadows, that is the withered, tired. एक तरफ एक ट्रेन डांस रो रही है, थकी हारी है, दूसरी तरफ ट्रेन डांस कर रही है। तो हाउ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, हाउ जॉयफुल
situation has been presented here in the second para by the poet. Now third para. Oh, hot afternoons you go to sleep. On hot afternoons मीन्स जब दोपहर की गर्मी चिलचिलाती होती है, यू गो टू स्लीप, तुम जाकर सो जाते हो. एंड विथ डिजी हीट सून्स ऑल द वर्ल्ड. डिजी हीट सून्स, डिजी हीट सून्स मीन्स होता है इन द डीप स्लीप. यू ट्रेवल ऑल द वर्ल्ड इवन द क्रोज डोज, यहाँ तक कि कौवे भी जिस समय दोपहर में सोते हैं, उधते हैं, डोज में सुंधना, एंड फॉरगेट टू काव, और काव काव करना भूल जाते हैं, छोड़ते हैं. द डॉग लाइज इन द शेड विथ हैंगिंग टंग, और कुत्ते भी जो है उस दोपहर में जब चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, कुत्ते भी अपनी जीभ बाहर निकाल के लटका करके हाफते हुए एक जगह शैडो छाव में जा करके छुप जाते हैं, लेट जाते हैं. I watch for hours and still the tireless trains, but poet keeps continue seeing the trains which are going through his home, his trails. कह रहा है कि सभी कौवे भी सो जाते हैं, कुत्ते भी आराम करने लगते हैं, यात्रीगण भी सोने लगते हैं, पब्लिक समाज सो जाता है, फिर भी पोएट बाय द साइड ऑफ विंडो सिटिंग, खिड़की के बगल में बैठ करके कंटिन्यू ट्रेनों का आना जाना देख रहा है. एंड स्टिल द टायरलेस ट्रेन, और फिर भी ट्रेन, स्टिल मीन्स फिर भी, द टायरलेस ट्रेन है मीन्स जो गाड़ियां हैं वो टायरलेस, बिना थके हारे, एनी हाउ दे आर ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग, गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन. मार्च ऑन मीन्स गोइंग ऑन, जारी रखती है चलना. एंड ऑन अलोंग देयर आयरन रोड, और कहाँ चलते हैं तो ऑल अलोंग आयरन, अलोंग मीन्स साथ साथ, आयरन मीन्स लोहे का, रोड मीन्स रास्ता, यानी जो रेलवे ट्रैक होता है लोहे का होता है ना, उसी को पोएट इज सेइंग दैट द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, और डज नॉट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, tirelessly they are proceeding, going on their railway track. Now next, sometimes at night in my sleep I hear, poet is saying that sometimes what happens with him, sometimes he realizes that in his sleep he hears द लो डिस्टेंट रंबल ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन जाए न जाए, दिन भर देखने की वजह से उसे क्या होता है, इतना मेंटली ही गेट्स टायर्ड दैट इन हिज ड्रीम आल्सो ही सीज द रंबलिंग ट्रेन्स. रंबलिंग में खड़खड़ा कर चलने वाली, रगड़ खा कर चलने वाली ट्रेनें. आई रब माई आईज, आर यू बी, रब मीन्स रगड़ना, लाइक दिस आईज, एंड सिट अपॉन माई बेड, एंड अवेकिंग फ्रॉम हिज स्लीप, his deep sleep. Poet wakes up, अपने नींद में सपने में देखता है और अचानक उठ के बैठ जाता है अपने बेड पे. स्टार्स टू रब हिज आइज, अपनी आंखें रगड़ने लगता है. एंड बीनीथ द लाइट ऑफ द फ्लिकरिंग मून, फ्लिकर FLICKER, फ्लिकर में होता है चमकना, जैसे कि रूम वगैरह है तो विंडो वगैरह से कुछ रोशनी आती है ना मून की, खिड़कियों से, विंडो से, दरवाजों से, दैट इज कॉल्ड फ्लिकर, वो फ्लिकर करना होता है. तो जो मून है, दैट मून इज फ्लिकरिंग इन द रूम, एंड उस लाइट में क्या करता है, या पोएट बैठा रहता है, moves the long shadowy outline far away, and then poet sees that the trains are yet going on the iron track, railway track, and in the moonlit also they are traveling tirelessly, बिना थके हारे ट्रेनें दिन तो दिन रात में भी चलते चली जा रही हैं. There are no restriction, no control over their movement. Like a huge serpent crawling through the, huge means भारी, serpent means सांप, crawling means रेंगना, like this सांप रेंगता है ना, that is called crawling, यूं like this. So poet is saying that it seems in night that trains are crawling just like the serpents. यानी कवि कह रहे हैं कि जब मैं रात में उठ जाता हूँ, सपने में देखता हूँ कि ट्रेनें रंबल कर रही हैं, खड़खड़ा रही हैं, जा रही हैं, अचानक मेरी नींद खुलती है, मैं उठ के बिस्तर पे बैठ जाता हूँ, और जब बिस्तर पे बैठता हूँ तो पलट करके पीछे देखता हूँ, जब खिड़की के पास, तो देखता हूँ कि सच में ट्रेन अभी भी जा रही है, और अब रात में ऐसा लग रहा है मानो एक बहुत बड़ा भारी सांप रेंगता हुआ आगे को बढ़ रहा है. The whole night, where do all these trains go day and night? Now all these up to here, 1 2 3 4, up to the fourth stanza, poet is describing how he sees, how he receives the observation. So now here poet is saying
here poet has started to ask questions about the trains, that where do all these trains go day and night, ये ट्रेनें दिन और रात कहाँ जाती हैं. You say they bore their way through hills. मॉम, तुम कहती हो कि ये ट्रेनें घाटियों पहाड़ियों में होते हुए आगे बढ़ जाती हैं. दे रोर ओवर ब्रिजेस अक्रॉस माइटी स्ट्रीम. आगे आप मम्मी बताती हैं कि नदियों, नालों, झीलों, तालाबों, समुद्रों, सागरों, महासागरों के ऊपर ऊपर ये ट्रेनें चलते हुए आगे बढ़ जाती हैं. दे क्रैश थ्रू फॉरेस्ट एंड वास्ट प्लेन्स. वे जंगलों में भी जाती हैं और बृहद चौड़े मैदानों में से भी होते हुए ट्रेनें गुजरती हैं, आगे बढ़ती हैं. बट एट द एंड ऑफ देयर रेस्टलेस जर्नीज, जर्नीज मीन्स राउंड, मूविंग राउंड राउंड मीन्स बार बार घूम घूम कर उसी जगह से आती जाती हैं. मीन्स कंटिन्यू, जब जर्नी ही कर रही हैं, चलती चली जा रही हैं. वेयर डू दे गो एंड फाइनली रेस्ट. तब ये ट्रेनें कहाँ जाती हैं और कहाँ आराम करती हैं. जब हर जगह चल ही रही हैं तो कहाँ जाती हैं ये ट्रेनें, कहाँ आराम करती हैं. मॉम टेल मी, आई एम टोटली अनेबल टू अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट्स, बेटा